Excuse me, do you know where Zakir Khan Shaheed Hospital is? Yes, yes. ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे दिलाता हूँ, शिला दरवाजा आएगा, शैतान बताएगा। Oh, thanks. I will use the Google Map. Begin with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most mighty, who's the King of kings and the Lord of lords, and who's the sustainer and the maintainer of the whole universe, and who's the creator of we all, to whom we all have to turn back. Today we are going to learn how to ask for and give direction. If we are looking for non-specific place, अगर हम किसी ऐसी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं जो हमें मालूम नहीं है, हमने पूछना है इधर कोई बैंक है, यहाँ पर कोई डाकखाना है, या यहाँ पर कोई बस का अड्डा है, तो हम इंग्लिश में ये पूछते हैं, is there a bank around here? Is there a post office around here? Is there a bus terminal near here? Around here? Near here? If we are looking for a specific place, अगर हम किसी खास जगह के बारे में पूछते हैं जिसका नाम हमें मालूम है कोई स्पेसिफिक जगह है, तो फिर हम कहते हैं where is the grassy ground? Where is the grassy ground? Where is the British English Language Center? Where is the British English Language Center? दूसरे तरीके से हम पूछ सकते हैं how can I get to the Swat Grammar School and College? How can I get to the Swat Grammar School and College? Yeah, where is the Swat Grammar School and College? So these are the two differences between looking for specific and non-specific places. तो आज के हमारे लेक्चर में हम दो बातें करेंगे. Number one, asking for direction. And number two, giving direction. So first of all, we are going to asking for direction. जब हम किसी से पूछते हैं, रास्ते में कोई मिलता है, so we are asking question, of course from strangers. वो अनजान लोग होते हैं, so we should ask them politely. अदब से, नरमी से बात करनी है. तो इसीलिए इंग्लिश में बहुत जबरदस्त एक क्लू है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस. अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम कोई खास फ्रेज स्पेल करते हैं, जैसे कि can you tell me, do you know? Using these kind of words, we use indirect question that bring change in the structure of the question. जो मेन क्वेश्चन है उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाती है. आपने थोड़ा सा समझा एग्जाम्पल से. डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं where is the Swat Grammar School? अब हम इसको जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन पे जिस अनजान सा पूछते हैं, तो हम उससे कहते हैं can you tell me where the Swat Grammar School and College is? तो इसमें जो ऑक्सिलरी है वो is, ये इसमें ऑक्सिलरी है, और सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो है द स्वात ग्रामर स्कूल एंड कॉलेज. तो इसको हम चेंज करेंगे, स्वात ग्रामर स्कूल को पहले लाएंगे और इस वे उसको बाद में लाएंगे. डू यू नो वेयर द ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर इज? तो इसको लास्ट में लिखेंगे और द ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर को पहले लेके आएंगे. सो इस तरीके से हम बनाते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन. How can I get to the British English Language Center? How I can get to the British English Language Center? और इसको मजीद बनाने के लिए हम कहेंगे how I could get into the British English Language Center. Now come to the second part of my lecture. Give direction. किसी को रास्ता बताना, किसी को समझाना. तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं. एक है across, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सो हम कहते हैं across the post office. Where is the bank? Across the post office. दूसरा है between, तो हम कहते हैं कि the national bank is between the British English Language Center and the Swat Grammar School and College. तो between जब दो के दरमियान आ जाए तो इसको कहते हैं between. Again, next to है the post office is next to the supermarket. एक सीधा चलो,
रास्ता बताते ना, कहते हैं वेयर इज दिस वन, wherever स्कूल कॉलेज, तो कहते हैं सीधा जाओ, तो हम कहते हैं गो स्ट्रेट ऑन, go straight on, go straight ahead, go straight ahead, go along the road, go along the road. तो इस तरीके से हम सीधा समझाते हैं। फिर हम कहते हैं कि यहां से सीधा जाओ और फिर इस तरफ मुड़ जाओ, तो हम कहते हैं go straight on, turn right. बाई तरफ मुड़ो, तो हम कहते हैं go straight ahead, turn left. टर्न लेफ्ट। अच्छा, अगर रास्ते में ज्यादा जगह आ रही हो, इंटरसेक्शन ज्यादा हो, मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं, रास्ते में एक चौक आ गया, फिर जा रहे हैं दूसरा चौक आ रहा है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे, तो फिर हम उसको कहते हैं टेक द सेकंड लेफ्ट, टेक द सेकंड राइट। अगर ज्यादा फर्स्ट राइट, take the second right, take the third right, take the first left, take the second left, take the third left. ये उस केस में जब इंटरसेक्शन दरमियान में जाना हो, चौक जाना हो, तो ये आज का हमारा लेक्चर था कि हम किस तरीके से किसी से पूछे कि फला जगह किधर है, फला बिल्डिंग कहाँ है, और फिर हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।